एक दो दो तीन क्वेश्चंस करे थे, आज भी एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं उस पे, based on series and parallel combination of capacitors, and then we will discuss the energy stored and all other things of this chapter. But before that एक दो और क्वेश्चन कर लो, उसके बाद फिर हम rest of the things we will discuss. ठीक है, तो चलो सर एक क्वेश्चन पे आते हैं. मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर. This way we are having capacitors. These are the capacitors arranged. Let this point be P. Let this point be Q. This point be Q, right? And we have capacitors like this C, 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 and C. You have to find out the equivalent capacitance. C equivalent is equal to what between P and Q. I'm giving you a time. I'm giving you some time to solve this. Please solve it and tell me the answer, please. Everyone, please try to solve and tell me the answer quickly. हो गया? चलो मुझे ये बताओ, ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है? हाउ दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड? पैरेलल। बोलो कैसे कनेक्टेड? ऑफ कोर्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इसका मतलब है कि यू कैन रिप्लेस दिस टू कैपेसिटर बाय अ सिंगल कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2C. मतलब आप इसका C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना लिख सकते हो? 2C, है ना? तो इन दोनों कैपेसिटर को यू कैन रिप्लेस बाय अ सिंगल कैपेसिटर, राइट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि हाउ दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड that I have circled with blue line. How are these two connected? No one? सर ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं? Yes, you are right. बोलो. Of course they are connected in series without any doubt. तो इसका अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1 upon C equivalent will be equal to 1 upon C plus 1 upon C. If we'll solve, you will get this as C by 2. है ना? तो अब देखिए ये आपका अरेंजमेंट कैसा आ जाएगा. ये ऐसे, यहाँ पर you have got one capacitor. यहाँ पर this is C here and after solving this we have got 2C. ठीक है, ये C है, ये 2C है. This is your how much is this? C by 2. और ये कितना है? ये C है. This point is P and this point here is Q. Remember that. This point is Q. अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं? ये वाले आर दे इन सीरीज और पैरेलल? सीरीज. Of course, very good. So they are in series. So 1 upon C equivalent will be equal to 1 upon C plus 1 upon 2C. If you solve this, you will get what? You will get this as 2 plus 1, 3. So this will be equal to 2C by 3. यहां तक नोट करो. कर लिया यहां तक नोट आप लोगों ने? प्लीज थोड़ा तेज.
Done, sir. Okay, then we have to solve this part of the circuit now. तो यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं. अब मुझे बच्चे इसका मतलब है कि सर्किट अगर अब मैं इसके बाद रीड्रॉ करूं तो दिस सर्किट विल लुक लाइक दिस. दिस विल बी C/2. Here this you have another capacitor. This point is Q. This point is P. This is C. This one is C/2 and this is 2C/3. Now tell me how these two capacitors are connected. This C and this 2C/3. How are they connected? Series or parallel? Who will tell me? Series. How are they connected? Series or parallel? Everyone please give it a thought. Parallel beta. It is not series बच्चे. It is parallel. इस बात को समझो. सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये parallel है या series है? तो एक बात सोचो. मुझे एक बात बताओ. थोड़ी सी मैं थोड़ा सा लॉजिक आपको देता हूँ. अगर मान लो इस पॉइंट पे मैं कुछ वोल्टेज मान लूं, पोटेंशियल मान लो इस पॉइंट पे मैंने कुछ पोटेंशियल मान लिया VQ. तो बच्चे इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना कितना होगा? बोलो बोलो बोलो. कल सिखाया ये सब. VQ. इस पॉइंट VQ. वेरी गुड. इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटे VQ. बिकॉज ये सब कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है. ठीक है, ये VQ ये कंडक्टर है, ये वाला भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम रहेगी. Potential will change when there will be a resistor or a capacitor or an inductor in between. तो potential तब change होगा. Otherwise, अगर if there is only a conductor, तो at every point of the conductor potential remains same. अच्छा, तो इस वाले कैपेसिटर के भी इस एंड पे पोटेंशियल VQ है और इस एंड पे भी पोटेंशियल VQ है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंड देखो, ये दोनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा. मान लो कि मैं कह लेता हूं V है, मान लो. तो आप एक बात बताओ कि दोनों कैपेसिटर इस वाले और इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है या नहीं है बेटे? बेटा भाई इस 2C/3 के अक्रॉस देखो, 2C/3 इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना V, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना VQ. इसी तरह से आप C/2 वाले कैपेसिटर को देखो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना V, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना VQ. दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है या नहीं है? बच्चे बोलो. Yes, sir. कौन से कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होता है? पैरेलल. इसका मतलब है कि these two capacitors are connected in parallel. ठीक है, अगर कभी डाउट हो तो इस तरह से चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो आप, है ना. तो इसका मतलब इसका C इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूंगा तो दैट विल बी C/2 बेटा प्लस ऑफ 2C/3. जल्दी करते हैं. तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 3C प्लस ऑफ 4C डिवाइडेड बाय 6. इसका मतलब हो जाएगा 7C/6. अब इन दोनों को वी कैन रिप्लेस बाय अ सिंगल कैपेसिटर. देख लेना मैं कहीं कुछ गलती ना करूं सिंप्लीफिकेशन में. And there is one more capacitor. This point is P, this point is Q. अब how these two capacitors are connected? कौन बता रहा है? ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? Of course they are in series. Very good. तो 1/C equivalent फाइनली आप क्या लिखोगे? 1/C प्लस ऑफ 1/7C/6, जिसको हम लिख सकते हैं 1/C प्लस ऑफ 6/7C, और इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो. तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7C. दिस विल बी 7 प्लस ऑफ 6, तो ये आ जाएगा 13/7C. तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7C/13. दिस इज माय फाइनल आंसर. नोट करिए. एक और क्वेश्चन हम लेते हैं एनसीईआरटी का, उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे. Done, sir. Very good. So I'm taking one more question, and that is of course from your NCERT. Question is like this. There are few capacitors here. This is one, this is the another, this is the third. These are 3 capacitors here that we are having, and there is one more capacitor here.
This is the fourth capacitor. ठीक है? And we have applied a cell of 500 volt across this whole combination. And each capacitor is of capacitance equal to 10 microfarad. सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है बच्चों? 10 माइक्रोफैराड. ये भी और ये भी. क्लियर है? आपको बताना है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर. क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन का दो पार्ट बना देता हूं. कैलकुलेट टोटल चार्ज एंड चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर. एक तो टोटल चार्ज आपने कैलकुलेट करना है और साथ साथ आपको क्या कैलकुलेट करना है? चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर. चलिए सर, यहाँ पे मेरी बात सुनिएगा. मैंने आपसे क्या क्या बोला? कैलकुलेट द टोटल चार्ज और साथ में क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है और साथ साथ चार्ज कैलकुलेट करना है ऑन ईच कैपेसिटर. तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. हाउ विल यू कैलकुलेट द टोटल चार्ज? कौन बताएगा बेटा? हाउ टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज? हाउ विल यू कैलकुलेट द टोटल चार्ज बच्चों? अच्छा बच्चों ये बताओ, कैपेसिटर के केस में चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CV Q. वेरी गुड. Q इज इक्वल टू CV. बेटा यहाँ पर एक कैपेसिटर है या मोर देन वन कैपेसिटर है? More than सोना One. ऑब्वियसली मोर देन वन. तो यहाँ पर नेट चार्ज जब भी बोलूं ना, तो नेट चार्ज का मतलब क्या होगा मेरे बेटे? नेट चार्ज का मतलब हो गया कि C को रिप्लेस कर दो C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज. इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है? यू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड देन मल्टीप्लाई इट विद द वोल्टेज दैट यू हैव अप्लाइड. अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे ये बताओ कि ये जो तीनों कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, ये हाउ दे आर कनेक्टेड? आर दे इन सीरीज और इन पैरेलल? जिसको मैंने सर्कल किया है, देखो. Series. all these three capacitors, how are they connected? Series. Of course it is in series. ठीक है, तो इसका C इक्विवेलेंट निकाल लो, है ना. पहले इसका निकाल लेते हैं. ठीक है, इसका निकाल लेते हैं. तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10. ठीक है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? मेरा 10/3. इसका मतलब आई कैन रिप्लेस ऑल दिस थ्री कैपेसिटर बाय सिंगल कैपेसिटर और उसके साथ यहाँ पर एक दूसरा कैपेसिटर. बच्चों ये हो गया 10/3 और ये वाला कितना है? 10. नाउ हाउ these two are connected बेटा? parallel. Of course they are in parallel. So what will be the final C equivalent? Let me call this as C equivalent dash. तो this will, या इसको C equivalent dash कह लेता हूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं क्या कर दिया ये. तो C equivalent की वैल्यू क्या लिखोगे? 10/3 प्लस ऑफ 10. This is equal to 40/3. This is the net capacitance. क्लियर है? तो टोटल चार्ज क्या होगा बच्चों? नेट चार्ज विल बी इक्वल टू 40/3 multiplied by the potential that is 500. So this will be equal to 2000/3 microcoulomb is the total charge. Am I right? Please check कर लो इसको.
हाँ बच्चों, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई कि पहले ऊपर तीनों कैपेसिटर्स आपको दिख रहे हैं कि दे आर इन सीरीज एंड नीचे वाला इज इन पैरेलल। तो हमारा जो टोटल चार्ज है वो इनको सॉल्व करके आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2000/3। ठीक है, दिस इज द टोटल चार्ज। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा हमसे, क्या बोला कि इंडिविजुअल कैपेसिटर पे भी चार्जेस बताओ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर सकता हूं। ये सब मैंने कैलकुलेशन सही करा है, देख लीजिएगा। ये 2000 नहीं, it would be 20,000. It will be 20,000/3. It will be 20,000/3. ठीक है, Yes. ठीक है सर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनिए। अब हमसे बोला था कि इंडिविजुअल कैपेसिटर पे भी टोटल चार्जेस बताइए। अब मेरा एक पॉइंट सुनिए आप। अब मैं आपसे कहूं कि ऊपर कितना टोटल कैपेसिटेंस कितना था, 10/3 माइक्रोफैराड है बेटा, और नीचे का कैपेसिटेंस कितना है, नीचे के कैपेसिटर का 10 माइक्रोफैराड, और टोटल चार्ज कितना आ रहा है बच्चों, प्यारे बेटे जल्दी बोल दो, आगे फिर पढ़ेंगे। 20,000 टोटल चार्ज कितना इंटर कर रहा है, 20,000 by 3. 20,000/3। ठीक है, 20,000/3 माइक्रोकूलम ऑफ द, या सिंपली अभी यूनिट जाने देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर चार्ज आया Q1, यहाँ पर चार्ज आया Q2, क्या ये सॉल्व किया जा सकता है? कल ऐसा कुछ सिखाया था मैंने, हाउ कैन यू सॉल्व दिस? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा बेटा? क्या मैंने ऐसा कल कुछ सिखाया था कि Q1:Q2 विल बी इक्वल टू C1:C2? Yes. या नहीं याद आ रहा यार, आप लोग बहुत टेंशन में लग रहे हैं। Q1 × Q2 is 10/3 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. सर सारे बच्चे बोलेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग मजा नहीं आ रहा। yes sir ठीक है, चलो इसका कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो ये 10/3 और ये 10 किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि नीचे वाला फैक्टर खत्म हो जाए? इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को। अगर हमने Yes, दोनों sir. को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, Q1:Q2, तो दैट विल बी इक्वल टू 30:10 आ जाएगा बेटा। ये सॉरी उल्टा कर गया मैं, 10 is 10:30 आ जाएगा बेटा। अब जब Yes. ये हमें पता चल गया तो अब हम क्या करते थे, Q1 इज इक्वल टू चार्ज रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज, दैट इज 20,000/3। ऐसे Q2 अगर हम निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय कितना, 20,000/3। तो चार्जेस पता चल जाएंगे। क्लियर? अच्छा सर, मगर ऊपर तो 3 कैपेसिटर्स थे, तो फिर आपने ये पूरे को एक मान के क्यों सॉल्व किया? क्योंकि बच्चे ऊपर वाले तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां पर देखो हुआ क्या, बेसिकली यहां से चार्ज डिवाइड हुआ ना, बेसिकली यहां से चार्ज डिवाइड हुआ, यहां से चार्ज डिवाइड हुआ। तो यहां से अगर चार्ज डिवाइड हुआ तो जितना चार्ज इस पे जाएगा उतना ही इस पे भी जाएगा, उतना ही इस पे भी जाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थ्री आर इन कनेक्टेड इन सीरीज। नहीं आ रही बात समझ में? ऊपर के तीनों कैपेसिटर पे ये चार्ज जाएगा, और ये जो नीचे वाला जो कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड का, उस पे इतना चार्ज फ्लो करेगा। कुछ समझ आई है बात? Yes, sir. सबने नोट कर लिया? आगे पढ़ते हैं सर, जल्दी नोट कर लो, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे। नोट कर लेना तो मुझे बताना ताकि मैं आगे पढ़ा सकूं। कर लिया sir. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी जल्दी से, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसका फॉर्मूला। तो चलो पहले डेरिवेशन देख लेते हैं थोड़ी सी जल्दी। ठीक है, मान लो सर ये कोई कैपेसिटर है, मान लो ये कोई कैपेसिटर है, ठीक है।
बेटा समझ रहे हो? और किसी भी इंस्टेंट पे मान लो कि इस प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस हैं और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये एक बॉडी है, इस पे नेट चार्ज 0 था, मान लो ये एक बॉडी है और इस पे नेट चार्ज 0 था। अगर इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकाल दूं, 1 कूलम का चार्ज मैं इसमें से बाहर निकाल दूं, तो इस बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। कितना नेगेटिव? अगर मैंने 1 कूलम पॉजिटिव 1 कूलम निकाला है तो कितना नेगेटिव आएगा? 1 कूलम नेगेटिव। वेरी गुड, 1 कूलम नेगेटिव। तो अब ये क्यों सिखाया मैंने, उस बात को समझते हैं। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे इस पे चार्ज प्लस क्यू है और इस पे चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है बेटा। अगर मान लो कि फर्दर में इसमें से कुछ चार्ज निकाल दूं, बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज डी क्यू, तो इस पे डी क्यू निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये चार्ज को अगर मैं इधर ले जाऊं तो इस पे उतना पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? जिस प्लेट से ये पॉजिटिव चार्ज मैंने निकाला उस पे निगेटिव आ जाएगा और जिस प्लेट पे जाके ये पॉजिटिव चार्ज अरेंज होगा उस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? तो किसी भी इंस्टेंट पे आप ऐसा अज्यूम करिए कि कैपेसिटर के दो प्लेट पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज था और एक पे निगेटिव चार्ज था। हमने इस वाले प्लेट से फर्दर और पॉजिटिव चार्ज बाहर निकाला इसकी और निगेटिविटी बढ़ाने के लिए, और उस चार्ज को हम कहां से कहां ले जा रहे हैं? बताओ बताओ बताओ, उस चार्ज को हम कहां से कहां ले जा रहे हैं? निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो देखो देखो, पॉजिटिव से निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे हैं। और मान लो इट्स अ कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, पहले तो कुछ कुछ बातें समझ लेते हैं। इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो मान लो C है। तो आप इस बात को समझिए कि व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर कैपेसिटर इज Q, तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं Q बाई C लिख सकता हूं। बेटा सोच के देखना, पोटेंशियल वोल्टेज। यस सर। बेटा एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी लोगों को समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज एक बच्चे के अलावा भी कोई रिस्पॉन्ड करो। अरे जिस इंस्टेंट पे द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज प्लस क्यू, सर चार्ज तो प्लस क्यू भी और माइनस क्यू भी है, तो आप प्लस क्यू सिर्फ क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैंने आपसे बोला था द चार्ज ऑफ कैपेसिटर मींस द चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट ओनली। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर मींस द चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट ओनली। तो आप देखिए, मान लीजिए कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C, व्हेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q, तो वोल्टेज की वैल्यू Q बाई C होगी या नहीं? आई एम कॉलिंग आउट नेम्स एंड वो लोग अपने माइक को अनम्यूट करके मुझे बताएं। नीलजा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? नीलजा, सोनम, सीरिंग, यस सर। तो प्लीज रिस्पॉन्ड। मुझे नहीं पता कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट कोई एक ही बच्चा कर रहा है। सीरिंग एंड सोनम, व्हाट अबाउट यू? डिड यू अंडरस्टैंड द स्टेप टिल हियर और नॉट? सोनम एंड सीरिंग, Sonam, can you hear me? Sering, can you hear me? खैर चलिए भाई, जिसको समझ में आ रहा है वही समझ लो। फिर पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इस इंस्टेंट पे Q बाई C है। अब मैं अगर ये चार्ज ले जाऊंगा फ्रॉम दिस नेगेटिव प्लेट टू द पॉजिटिव प्लेट, तो आई विल हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस पोटेंशियल। एंड इफ यू रिमेंबर, वर्क डन कैन बी रिटन एज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। याद आ रहा है? क्योंकि आपको याद हो तो पोटेंशियल हमने लिखा था वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इसी चैप्टर के प्रीवियस पोर्शंस में। यस। ठीक है, तो वर्क डन को हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। तो dw को हम लिख सकते हैं बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? Q बाई C मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। ठीक है, अब आप जितना भी वर्क करते हो ना किसी भी सिस्टम में, वो वर्क उस सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये जो वर्क कर रहे हो ना, वो वर्क क्या होगा? इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर या एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो बेटा ये तो स्मॉल चार्ज ले जाने में ये वर्क किया हमने, तो व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन? तो टोटल वर्क डन के लिए वी शुड इंटीग्रेट दिस होल वैल्यू Q C D Q। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेट कर लो। और कहां से कहां तक? व्हाट शुड बी द लिमिट?
तो आप ऐसा मान लो कि लेट इनिशियल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर वाज 0 एंड फाइनल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स इज इक्वल टू Q। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? 0 से Q तक। तो वर्क डन आप क्या लिखोगे? C इज कांस्टेंट विदाउट एनी डाउट। तो इंटीग्रेशन आपने करना है Q dQ का। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो Q²/2 फ्रॉम 0 से Q। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू विच इज दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/c, दिस विल बी इक्वल टू Q²/2 माइनस ऑफ 0, हेंस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू Q²/2c। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये एक फॉर्मूला है, पहले यहां तक नोट करिए। मैं और इसी चीज को और भी फॉर्म में लिखना सिखाता हूं, तो पहले आप यहां तक नोट करिए, जल्दी से नोट करिएगा और बातों को हम आगे करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना बच्चे। यस सर, हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, एक तो फॉर्मूला है बेटा इन टर्म्स ऑफ चार्ज, कि आप इतना वर्क कर रहे हो तो ये जो आपकी एनर्जी स्टोर होगी किसी भी कैपेसिटर में, दैट इज इक्वल टू Q²/2c, मतलब कितना चार्ज है और क्या कैपेसिटेंस है। इसी को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी Q²/2c को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हमें मालूम है कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैन बी रिटन एज कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज या पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 2c, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यस पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं C²V²/2c। one C will cancel out by another C, so U can be written as equal to half CV². This is also the way of writing the same potential energy. अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट एक और पॉइंट पे आते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी को हम ऐसे लिख दें, ये Q² एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय C, C इज कैपेसिटेंस। तो हमें मालूम है सर Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C कैन बी रिटन एज Q बाई V, C यस कैन बी रिटन एज Q बाई V। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। तो U की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 Q विल कैंसल आउट बाय अनदर Q, so this can be written as half into Q into V. This is also the form of writing the same potential energy stored in the capacitor. अब इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या पैरामीटर गिवन है, आपको क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, उस पर ये चीजें डिपेंड करेंगी, है ना। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एक और इससे रिलेटेड एक बात पहले मैं बताऊं, फिर आगे की डिस्कशन पे आऊंगा। इज इट डन बेटा? यस सर। ओके, नाउ अब मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, एंड देन फिर उसके आगे की बात हम करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सुनिएगा कि सर मुझे एक बात बताओ, इफ दिस इज अ कैपेसिटर, मुझे आप लोग बताएंगे, अगर ये कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस मैंने सेल लगा दिया, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, सेल का वोल्टेज V है, एंड द टोटल चार्ज दैट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू दिस सेल, मान लो टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इज Q। ठीक है, तो व्हाट कैन यू राइट Q व्हिच इज द चार्ज व्हिच इज गिवन टू द कैपेसिटर। या आप ऐसे समझो कि मैं आपसे ये कहूं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और इसका अक्रॉस मैंने वोल्टेज लगा दिया V, तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि व्हाट इज द चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस कैपेसिटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज? सर TV. कोई बता सकता है? वेरी गुड, सिंपल सी बात है भाई, कितना चार्ज फ्लो करेगा? तो चार्ज इज नथिंग बट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज। तो दिस विल बी Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय V, दिस विल बी द चार्ज। इसमें तो कोई कष्ट नहीं है आपको। CV इज द चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर्ड, राइट। ठीक है, Q इज इक्वल टू CV इज द चार्ज, है ना। अब जब ये चार्ज Q इज इक्वल टू CV है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना ध्यान से, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू
चार्ज कितना ट्रांसफर्ड हुआ है ये बताना। Q. सीवी। Yeah. क्यू की वैल्यू कितनी है? सीवी। अच्छा, इस चार्ज को जब इसने ट्रांसफर किया, इस सेल ने जब इस चार्ज को ट्रांसफर किया, तो इसने कुछ वर्क किया होगा ना इन ट्रांसफरिंग दिस चार्ज। तो Yes, sir. चार्ज को ट्रांसफर करने में वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन बाय सेल। वर्क डन बाय सेल, तो आपको याद होगा वर्क डन बराबर होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल या वोल्टेज। कैसे सर? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है ना। तो वर्क डन को हम चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो वर्क डन बाय सेल कैन बी रिटन एज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू कितना है बेटा? CV मल्टीप्लाइड बाय V। तो वर्क डन बाय सेल को हम कितना लिख सकते हैं? CV का स्क्वायर। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ये बात सबको क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? एनर्जी कितनी स्टोर हुई है? Half एनर्जी CV. स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। वर्क कितना हुआ? CV स्क्वायर। एनर्जी कितनी स्टोर हुई? हाफ CV स्क्वायर। मुझे बताओ कि वर्क ज्यादा है या एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा है? विच ऑफ द टू इज ग्रेटर, वर्क और एनर्जी? Work. ऑब्वियसली वर्क Work. ज्यादा है बेटा, वर्क इज डबल ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड। इसका मतलब जितना हम वर्क कर रहे हैं ना, उसका हाफ ओनली इज गेटिंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हाफ ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब इफ देयर इज ओनली वन सेल, तो एनर्जी लॉस्ट कितना हो जाएगा? एनर्जी लॉस्ट कितना हुआ कि भाई जो टोटल वर्क डन हुआ वो CV स्क्वायर हुआ, तो एनर्जी लॉस्ट कितना हुआ? हाफ CV स्क्वायर। यही तो हुआ ना कि इतने का तो लॉस हो गया सर, ओनली हाफ ऑफ द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, वो एनर्जी गई Yes, कहां sir. सर? ये कहां डिसअपियर हुआ? आपने ये बात ऐसी हो गई कि मान लो आपने वर्क किया 10 जूल और मेरे अंदर वर्क सिर्फ स्टोर हुआ ओनली ऑफ 5 जूल, तो बाकी 5 जूल कहां गया? तो आप हमेशा याद रखो कि व्हेनेवर सेल परफॉर्म्स वर्क इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, तो हाफ ऑफ द वर्क इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसमें लॉस हो जाता है बोलो? Heat. हीट में, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हीट एनर्जी इस केस में, इन द केस व्हेन देयर इज ओनली वन कैपेसिटर एंड वन सेल, तो हीट लॉस्ट कितना होगा? तो हीट लॉस्ट की वैल्यू भी हाफ CV स्क्वायर ही होगी, क्योंकि जो जो नहीं स्टोर हुआ वो हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। स्टोर कितना हुआ? हाफ CV स्क्वायर। मैंने वर्क कितना किया था? CV स्क्वायर। इसका मतलब हाफ CV स्क्वायर का लॉस हो गया। वो लॉस किस फॉर्म में हुआ? तो ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ हीट। नोट कर लो इसको। देन बेटे Yes, sir. ठीक है, अब एक और पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू दिस एनर्जी। अब देखो, अगर मान लो इफ यू हैव टू कैपेसिटर्स एंड इफ यू connect the two capacitors, or in other words if you have two conductors and if you connect the two conductors with some charges and they have some capacitance, तो जब भी आप दो कैपेसिटर या दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हो तो चार्जेस गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड और एनर्जी ऑल्सो गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसी चीज को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी, इस केस को जल्दी से समझते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देखो बेटा होता क्या है। अगर मान लो कि लेट से देयर इज वन कंडक्टर, मान लो ये एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस C है और इसको किसी इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा है। ये कंडक्टर A है, इसको हमने चार्ज करा हुआ है और इसका कैपेसिटेंस बेटा कितना है? तो मान लो इसका कैपेसिटेंस C1। देयर इज अनदर कंडक्टर, ध्यान से सुनना, इस कंडक्टर का नाम है B और इस कंडक्टर को भी हमने इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड का मतलब समझते हैं आप लोग? पता नहीं, इंसुलेटेड के थ्रू चार्ज फ्लो नहीं करेगा ना, तो इंसुलेटेड स्टैंड पे इसलिए रखा है कि चार्ज ग्राउंड में फ्लो ना करे। अब मान लो इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, देयर कैपेसिटेंसेस आर डिफरेंट,
और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, होता क्या है, इस बात को सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि सर जब भी आप दो कैपेसिटर या दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करते हैं विद डिफरेंट कैपेसिटी, तो उस केस में चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर फ्लोज इनटू द अनदर कंडक्टर। फिर से सुन रहा हूं, चार्ज फ्रॉम द वन कंडक्टर फ्लोज टू द अनदर कंडक्टर, और तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। नहीं आया, नहीं आया। मान लो कि दिस कंडक्टर is at a potential of V1 and this conductor is at a potential of V2. तो बेटा इनिशियल चार्ज अगर मैं इस पे लिखूं तो क्या C1 V1 लिख सकता हूं? टेल मी यस और नो। और इस Yes, पे sir. फाइनल चार्ज, इस पे इनिशियल चार्ज लिखूंगा तो C2 V2 लिख सकता हूं। जब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे ना, तो आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में या एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज फ्लो करेगा, not due to the charge difference, due to the potential difference। फिर से सुनो, charges flows due to the potential difference and not due to the charge difference। ठीक है, तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे ना, आफ्टर कनेक्टिंग A and B, charge will flow from one to another due to potential difference till their potential, obviously electric potential, becomes सेम। जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते तब तक चार्ज एक से दूसरे में फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। वो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा? तो दैट फाइनल पोटेंशियल इज रिटन एज द नेट चार्ज डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस। और वो कैसे लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है Q1 प्लस ऑफ Q2 व्हिच इज द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस कैन बी रिटन एज C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2। दिस इज अदर वे ऑफ राइटिंग द सेम फॉर्मूला। ठीक है, अगर चार्ज के टर्म्स में लिखना है तो आप फाइनल पोटेंशियल को लिखेंगे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है तो आप लिखेंगे C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। समझ आ गया? इसका मतलब है कि जब भी आप दो कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे ना, तो अगर दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं है तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर और वन कैपेसिटर टू द अनदर, तब तक जब तक दोनों के पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं हो जाती। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट विल बी द फाइनल पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल विल बी सिंपली इक्वल टू द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल कैपेसिटेंस। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, अब दूसरी बात सुनो कि नॉट ओनली दिस के पोटेंशियल चेंज होता है, या पोटेंशियल चेंज ही हो रहा है ना, इसका V1 इसका V2 है और फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो पोटेंशियल चेंज हो गया। और वो चेंज हुआ बिकॉज चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं थे, तो टू मेक द पोटेंशियल सेम चार्जेस गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अब दूसरी बात सुनो, इस केस में दूसरी बात देखें बेटा, तो एनर्जी में भी डिफरेंस आएगा। देखो, जब ये दोनों कंडक्टर हैं तो इनकी एनर्जीज अगर आप देखोगे, इनिशियल एनर्जी दोनों का, तो आप लिख सकते हो हाफ इंटू C1 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू C2 इंटू V2 का स्क्वायर। कैन यू राइट दैट? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर्स कैन बी रिटन एज हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ C2 V2 का स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. जब आप फाइनल एनर्जी लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? हाफ C1 इंटू V का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ C2 इंटू V का स्क्वायर। क्यों लिखेंगे सर आप ऐसा? बिकॉज फाइनली दोनों के पोटेंशियल हैज बिकम सेम। वेरी गुड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, हाफ इंटू C1 प्लस ऑफ C2 इंटू V की वैल्यू मैंने अभी आपसे क्या बोला? V को आप लिख सकते हैं C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2 का होल स्क्वायर। एम आई राइट? Yes, sir. तो देखो बेटा, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या सेम है? ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है या डिफरेंट है? Different. बेटा ये तो देख के पता चल रहा है ना कि these two results are not same। यहाँ पर ये है हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ C2 V2 का स्क्वायर, यहाँ पर ये हाफ, इसको चाहो तो थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, हाफ C1 प्लस ऑफ C2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना बच्चे, C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। बेटा बच्चा, ये कैंसिल हो गया, तो इसको मैं फाइनल को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हाफ
into C1 V1 plus C2 V2 the whole square upon C1 plus C2. This is my final पोटेंशियल एनर्जी. जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी वो ये है और इनिशियल ये है. ऑफ कोर्स दे आर नॉट सेम. होता क्या है बेटा कि जब भी आप दो कंडक्टर या दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो विथ अ वायर तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बट उस प्रोसेस में ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कुछ एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. मतलब इस केस में एनर्जी का लॉस होता है. और आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये यू आई माइनस ऑफ यू फाइनल, मतलब इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल. सर इनिशियल में से फाइनल को क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप? बिकॉज मैंने बेटा आपसे ये बोला कि इनिशियल एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ द फाइनल एनर्जी. दैट इज व्हाई यू आर सब्ट्रैक्टिंग फाइनल फ्रॉम इनिशियल. जब आप ये सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट एज हाफ इनटू C1 C2 into V1 minus V2 the whole squared divided by C1 plus of C2. This is your formula for the difference of initial and final energy. ये बात आपको समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. Whenever you connect two conductors or two capacitors at different potentials, तो उस केस में होता क्या है, चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर और कंडक्टर फ्लोज टू द अनदर कैपेसिटर और कंडक्टर टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स सेम. पहली बात. दूसरी बात, इन दिस प्रोसेस देयर अकर्स अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस के कारण होता क्या है कि ड्यू टू द रेजिस्टेंस व्हाट हैपेंस कि सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, तो एनर्जी का लॉस हो जाता है किस फॉर्म में बच्चे? तो एनर्जी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, और एनर्जी का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता है? तो एनर्जी का डिफरेंस का फॉर्मूला सीधा सीधा आता है हाफ इंटू C1 इंटू C2 V1 माइनस ऑफ V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई. Yes. नोट कर लो जल्दी से. हो गया sir. वेरी गुड. सबको समझ आ गई बात? एक बार सारे बोल दें, सारे बोल दीजिए. Yes, sir. पता नहीं सारे बोलते भी हैं या नहीं. एनीवेज खैर, जैसे आप देखो इसी पे एग्जांपल, इस बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार. तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल मेरा सुनिएगा. आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन कि मान लो देयर इज अ कैपेसिटर लाइक दिस एंड दिस इज अ चार्ज कैपेसिटर. दिस हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ C या C ही मान लो इसको. दिस इज अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C एंड हैज अ पोटेंशियल ऑफ V. इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V. ठीक है, अब इस कैपेसिटर के साथ हमने दूसरा कैपेसिटर, एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस इसके साथ कनेक्ट कर दिया इन पैरेलल. ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं. एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर of same capacitance is connected in parallel. ठीक है, with the capacitor shown. Find the final potential and loss of energy. Did you understand the question? Please note it. Please write down this question. सर ये एक अनचार्ज कैपेसिटर, सॉरी एक ये कैपेसिटर है जिसको हम किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? अनदर कैपेसिटर जो अनचार्ज्ड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनचार्ज्ड? इसका मतलब है कि उस कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है बेटा, पोटेंशियल कितना है, कोई बता सकता है? अच्छा चलो पहले क्वेश्चन नोट कर लो तुम जल्दी से. हरी अप.
Done, sir. वेरी गुड। अब देखो बेटा इस पूरे सिचुएशन को समझो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C which is has been charged with a voltage of V, मतलब इसका वोल्टेज V है। इसके साथ हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिया, दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C ही है, आइडेंटिकल कैपेसिटर, बट इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट विल बी द इनिशियल वोल्टेज ऑफ दिस कैपेसिटर? भाई चार्ज होता क्या बेटे? CV। अगर चार्ज नहीं है मतलब चार्ज जीरो है तो वोल्टेज ही जीरो हो सकता है, बिकॉज कैपेसिटेंस तो जीरो नहीं होगा ना किसी भी कैपेसिटर का। नहीं आया? Yes, sir. क्या हो गया बेटा? मुझे एक बात बताओ, Q इज इक्वल टू CV का मतलब लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो मतलब है ना। अब मैं Yes. आपसे कह रहा हूं चार्ज जीरो है तो राइट साइड भी जीरो होना चाहिए। अब राइट साइड जीरो होने का मतलब या तो C जीरो होगा या तो V जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे। बट एक बात ऑब्वियस है कि कैपेसिटेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कैपेसिटर है तो उसमें कैपेसिटेंस तो होगा ही ना। इसका मतलब है क्या जीरो हो सकता है? वोल्टेज जीरो हो सकता है। तो याद रखो, अगर आपसे मैं कहूं अनचार्ज कैपेसिटर, इसका मतलब है कि उस कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो होगा। कितना होगा बोलो? Zero. Zero. जीरो। इस कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज बेटा V है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, और इस कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज जीरो है। अब जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दे विल रीच टू अ कॉमन वोल्टेज, मतलब दोनों के वोल्टेज या पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। और अभी मैंने Yes. क्या बताया फॉर्मूला क्या बताया? मैंने बताया C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, है ना बेटे? C1 प्लस Yes. C2। तो V फाइनल की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? C1V1। तो ये C1 की वैल्यू है C, V1 इसका मतलब इनिशियल वोल्टेज दैट इज V, प्लस ऑफ C2 C, बट इसका वोल्टेज जीरो, डिवाइडेड बाय C1 इज C, प्लस ऑफ C इज C। तो V फाइनल की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो? देखो तो C00 तो ये CV by 2C, तो इसका मतलब है कि ये V by 2 लिख सकते हो या नहीं बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फाइनल वोल्टेज। अच्छा, आप दूसरी चीज आपसे क्या पूछा? एनर्जी का डिफरेंस पूछा। एनर्जी के डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने अभी आपसे क्या बोला? C1 इंटू C2 इंटू V1 माइनस ऑफ V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2। चलो लिखते हैं वैल्यूज। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ, C1 भी C है, C2 भी C है। V1 की वैल्यू कितनी है? V। V2 की वैल्यू कितनी है? जीरो, Zero. डिवाइडेड बाय C प्लस C। आई होप सबको मेरी बात। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा बेटा? हाफ इंटू सी स्क्वायर, ये V का होल स्क्वायर है, राइट? तो ये V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। ठीक है, तो ये कितना Yes, हो sir. जाएगा? 1/4 इंटू एक C से एक C कैंसिल कर सकते हो, तो 1/4 इंटू C इंटू V का स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो अगर अभी भी कोई इशू है तो पूछो। इन केस ऑफ डाउट प्लीज आस्क। इज इट डन बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। ऐसा ही एक बार और क्वेश्चन दे रहा हूं एंड आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व। देखो मैं स्टेटमेंट what नहीं लिख रहा the हूं। व्हाट? नहीं समझा। sir? How to find the potential between two capacitors? How to find means what? I mean, in different cases there will be different method, but in which aspect are you asking this? Like sir, between two capacitors. Between two capacitor, there is no concept of potential between the two capacitor. For example, अगर आप ये मुझे समझ में जहां तक आ रहा है वो शायद ये है कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर है, इसका वोल्टेज कुछ है V1 और इसका वोल्टेज है कुछ V2, तो इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल कितना है? आर यू ट्राइंग टू आस्क दिस और व्हाट? Yes. बेटा अगर डिफरेंस निकालना है, ये V1 है 10 वोल्ट, ये मान लो कि ये 6 वोल्ट है, एंड इन दोनों के पोटेंशियल, इन दोनों के बीच के वोल्टेज का डिफरेंस निकालना है। यू वांट टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल और वोल्टेज
between these two capacitor, तो कुछ नहीं करना है, 10 - 6 कर लो. Difference का मतलब तो यही होता है ना कि you subtract the voltage of one from the another. Right, बच्चे? What? Yes. Okay, I am giving you Sir, one more question. बोलो 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 बेटा. Sir, there was a question in yesterday's assignment. Oh, We have to find. if there is a question in assignment, do one thing. Can we discuss in the next class? Because obviously Sure. we are running short of time now. So do one thing. Remind me about that question in the next class, right? Yes, sir. Okay. So remind me about that question at the starting of the class, right? बिल्कुल initial time पे, मतलब बिल्कुल शुरू में आप मुझे remind करा देना, तो मैं question solve करा दूंगा, ठीक है? Okay, sir. Okay. Now one more question on based on the formula that we have just discussed. कि मान लो if I have this capacitor, let's say, and this capacitor is capacitance of C, and the voltage of this capacitor, initial voltage to which this capacitor is charged, is V, and there is another capacitor, and this capacitor has a capacitance of C/2. Yeah, ऐसा कर लो. The another capacitor has a capacitance of 2C, and the voltage to which this capacitor is charged is, let's say, 3V. मान लो. Now these two capacitors are connected. These two capacitors are connected. अब मुझे बताओ कि अगर इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो what will be the final voltage and what will be the potential energy difference? जल्दी बताओ. If you will connect these two capacitors, what will be the final value of voltage and what will be the energy difference? Okay, what will be the final potential? Who will tell me? What formula are you going to use? C1V1 plus C2V2 is divided by C1 plus C2, right? Beta? Yes, sir. So C1 is C, V1 is V, plus another capacitor has having capacitance of 2C multiplied by 3V divided by C plus of 2C. So what will be the final value of potential? CV plus of 6 CV plus of 3C is equal to 7 CV divided by 3C. C and C cancels out, 7 by 3V. This is your final answer. Did you understand? This is the final voltage. What will be the energy difference? Formula बोलो. Half क्या है energy difference का formula? C1 into C1, C2. तो C1 into C2 तो 2C into V1 minus of V2 means V minus of 3V, let's say, and this is whole square divided by C1 plus C2. That means C1 C plus of 2C. The potential energy difference will be half into 2C squared, right? 2 into C 2C squared. This will be 2V, और 2V का स्क्वायर करोगे तो 4V स्क्वायर हो जाएगा divided by 3C. Correct है? 1C cancels out by another C here. This 2 and this 2 cancels out. So what will you get in the potential energy difference? You will get this as 4 by 3 CV square. This is the potential energy difference. Did you understand the concept? Tell me yes or no. Yes, sir. Means what? This means that whenever you will connect the two capacitors, the charge and the potential, if their potential are not same, then the charge will get distributed so that their potential becomes equal. But in this process, energy, there will be loss of energy, and that loss can be calculated by the formula that we have just studied today, and the final potential